Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Chapter number 5: Combustion and Fossil Fuel. The early men used to live in dark nights without any light. आदि मानव बिना किसी प्रकाश के अंधेरी रातों में रहा करता था. During those period of time, by rubbing two stones, accidentally they discovered the fire. समय की अवधि के दौरान पत्थर से रगड़कर गलती से आग की खोज की. After this discovery of fire, it was used in various ways like cooking to maintain the body temperature in winter season, etc. Some of these humans said that fire as God, some said as fundamental substance like air, water and earth, but modern scientists said that it is a process in which substance react with oxygen, gives lots of heat and light. This is how we define combustion. आग की खोज के बाद खाना पकाने के काम में और शरीर का तापमान को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. कुछ लोग कहते थे कि आग भगवान का स्वरूप है. कुछ लोगों ने कहा कि ये फंडामेंटल सब्सटेंस है जैसे हवा, पानी और धरती. पर मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि ये प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट रिलीज़ करता है, जिसको हम कंबशन कहते हैं. स्पॉन्टेनियस कंबशन, द कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स क्विकली विदाउट any external heat to produce large amount of heat and flame is known as spontaneous combustion. All that substances that undergo spontaneous combustion such as phosphorus and coal dust in mines have very low ignition temperature. इस टाइप के कंबशन में सब्सटेंस जो है अपने आप ही जलने लगता है रूम टेम्परेचर पे, बिना किसी बाहरी आग या चिंगारी को लगाए बिना ही, और बहुत लार्ज अमाउंट में हीट और फ्लेम को प्रोड्यूस करता है. ऐसे सब्सटेंसेस हैं फॉस्फोरस और कोल डस्ट जो माइन में होती है. वो फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर पे अपने आप ही जलने लगता है और इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत लो होता है. Substances that burn in the presence of air or oxygen are called combustible substances. Wood, coal, petrol and LPG are examples of combustible substances. वे पदार्थ जो हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं उन्हें दहनशील कहते हैं, combustible substances कहते हैं. उदाहरण wood, coal, petrol, LPG. Substances that do not burn in the presence of air or oxygen are called non-combustible substances. Water, cement and sand are non-combustible substances. वे पदार्थ जो हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जलते वे गैर दहनशील कहलाते हैं. उदाहरण पानी, सीमेंट और बालू. Types of combustion. Based on the rate or speed at which substances catch fire, combustion is divided into 3 different types: rapid combustion, spontaneous combustion and explosion. गति के दर के आधार पर जिस पदार्थ में आग दहन होता है उसे 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है: रैपिड combustion, spontaneous combustion and explosion. मीन्स कितनी स्पीड से कौन से सब्सटेंस में आग लगती है, जलता है, उसके बेसिस पे
इसको कंबशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन. Rapid combustion, the combustion in which a substance burns very fast with external heat provided to produce large amount of heat and flame, is known as rapid combustion. All substances that undergo rapid combustion, such as natural gas, LPG and petrol, have very low ignition temperature. इस टाइप के कंबशन में सब्सटेंस जो है बहुत जल्दी जलता है और बहुत लार्ज अमाउंट में हीट और फ्लेम को प्रोड्यूस करता है. ऐसे सब्सटेंसेस हैं नेचुरल गैस, एलपीजी, पेट्रोल, और इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत लो होता है. स्पॉन्टेनियस कंबशन, द कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स क्विकली विदाउट any external heat to produce large amount of heat and flame is known as spontaneous combustion. All that substances that undergo spontaneous combustion, such as phosphorus and coal dust in mines, have very low ignition temperature. इस टाइप के कंबशन में सब्सटेंस जो है अपने आप ही जलने लगता है रूम टेम्परेचर पे, बिना किसी बाहरी आग या चिंगारी को लगाए बिना ही, और बहुत लार्ज अमाउंट में हीट और फ्लेम को प्रोड्यूस करता है. ऐसे सब्सटेंसेस हैं फॉस्फोरस और कोल डस्ट जो माइन में होती है वो. फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर पे अपने आप ही जलने लगता है और इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत लो होता है. Combustion can also be categorized into complete and incomplete depending upon the extent of air supply available for combustible substance for burning. कितनी एक्सटेंट में सप्लाई ऑक्सीजन की मिल रही है कंबस्टेबल सब्सटेंस को जलने के लिए, इसके आधार पे भी कंबशन को कैटेगराइज किया जा सकता है: कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन. Complete combustion, the combustion that takes place in adequate amount of oxygen or air is called complete combustion. Water, carbon dioxide, heat and light are the main products obtained during complete combustion. ये combustion तभी होता है जब ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन या एयर प्रेजेंट हो, इसको बोलते हैं complete combustion. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट ये मेन प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो प्राप्त होते हैं कंप्लीट कंबशन होने पर. इनकम्प्लीट कंबशन, द कंबशन दैट टेक्स प्लेस इन एन इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और एयर इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंबशन. सूट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन. ये कंबशन तब होता है जब कम अमाउंट में ऑक्सीजन और एयर मिलती है सब्सटेंस को. सूट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट ये प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं, प्राप्त होते हैं इस कंबशन के दौरान. कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन. कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन. फॉलोइंग आर द 3 एसेंशियल कंडीशंस फॉर कंबशन टू टेक प्लेस. कंबशन होने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं. नंबर 1, presence of combustible substance. Combustion can take place only in the presence of combustible substance such as coal, kerosene or wood. Combustion तभी होगा जब combustible substance present हो, जैसे coal, kerosene and wood. Number 2, presence of a supporter of combustion. Presence of air or oxygen in sufficient amount is essential for combustion to take place. अगर ऑक्सीजन और एयर प्रेजेंट है सफिशिएंट अमाउंट में तभी कंबशन टेक प्लेस करेगा. अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. कंबशन टेक्स प्लेस ओनली एट स्पेसिफिक टेम्परेचर. कंबशन तभी होगा जब सब्सटेंस उसके इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा. इग्निशन टेम्परेचर. The minimum temperature at which combustion takes place is called ignition temperature. न्यूनतम तापमान जिस पर दहन होता है उसे ignition temperature कहते हैं. Substances with very low ignition temperature
are called flammable substances or inflammable substances. Petrol, diesel, kerosene and CNG are few examples of flammable substances. वे substances जिनका ignition temperature बहुत low होता है उन्हें flammable substance या inflammable substances कहा जाता है. जैसे कैरोसिन का जो टेम्परेचर है वो 210 डिग्री है और वुड का जो टेम्परेचर है वो 450 है. तो इग्निशन टेम्परेचर कैरोसिन का कम है, इसीलिए जब आग लगाई जाती है तो कैरोसिन सबसे पहले जलता है और वुड बाद में जलता है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है. Substances with high ignition temperature are called non-flammable substances. Glass and sand are examples of non-flammable substances. वो substances जिनका high ignition temperature होता है उनको non-flammable substances बोलते हैं. Glass और जो sand यानी बालू examples हैं non-flammable substances के. The visible gaseous part of fire is called flame. आग के दिखाई देने वाले गैसेस भाग को ज्वाला यानी फ्लेम कहा जाता है. इट इज़ द रीजन वेयर कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस. ये रीजन है जहाँ पे कंबशन होता है. डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड द टेम्परेचर, अ फ्लेम कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स. फ्लेम डिफरेंट कलर्स की होती हैं. उसके ऑक्सीजन सप्लाई किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करता है. नेचर ऑफ सब्सटेंस कैसा है और टेम्परेचर कैसा है उसके ऊपर से फ्लेम डिफरेंट कलर्स की होती है. फ्लेम ऑफ डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस बाय वेरियस सब्सटेंसेस. फ्लेम डिफरेंट कलर्स की प्रोड्यूस होती हैं वेरियस सब्सटेंसेस में. नाउ इन दिस डायग्राम वी विल सी 3 zones of a candle flame. The innermost zone, which is black in color and least hot. जो इनरमोस्ट जोन होती है वो ब्लैक कलर में होती है और बिल्कुल गर्म नहीं होती है. मिडल जोन विच इज़ येलोइश इन कलर एंड मॉडरेटली हॉट. मिडल जोन जो येलो कलर में होती है और मध्यम गर्म होती है. आउटर जोन विच इज़ ब्लूइश इन कलर एंड इज़ द हॉटेस्ट जोन. आउटर जोन जो है वो ब्लू कलर में होता है और ये सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट होता है फ्लेम का. अ कैंडल फ्लेम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 zones: innermost zone, middle zone and outer zone. The innermost zone, the zone near the wick of a candle, is called the innermost zone of the flame. This zone is black in color, has unburnt wax and is the लीस्ट हॉट जोन. इनरमोस्ट जोन जो है वो विक यानी बत्ती के पास का होता है और ये जोन ब्लैक कलर में होता है और इसमें जो वैक्स वो अनबर्नड रहता है और सबसे कम गर्म रहता है. नंबर 2, मिडल जोन. द जोन इन द मिडल ऑफ द फ्लेम इज़ कॉल्ड मिडल जोन. द जोन इज़ yellowish in color and moderately hot as the wax vapor burn partially. This zone is luminous zone because partial combustion of carbon produces glow. If we keep a glass rod in middle zone, the unburnt carbon particles get deposited on it and glass rod turns black. The incomplete combustion is because the wax vapor does not get enough oxygen for the complete combustion. ये मिडल जोन होता है, ये येलोइश कलर में होता है और यहाँ पे ये मॉडरेट गर्म यानी ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है. और यहाँ पे जो है वो वैक्स जो है वो पार्शियली बर्न होता है. इसको लुमिनस जोन कहा गया है क्योंकि यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है कार्बन्स का. और अगर हम यहाँ पे एक रॉड रखते हैं मिडल जोन के अंदर तो जो अनबर्न पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, रॉड ब्लैक हो जाएगी. और क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है. थर्ड इज़ आउटर जोन. आउटर जोन
of a flame shows complete combustion of the wax vapor. जो outer zone में complete combustion होता है wax vapor का, it is a bluish color as the fuel gets completely burned off due to the availability of oxygen. यहाँ ये ब्लूइश कलर में होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है. एंड दिस जोन इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, और इसको हॉटेस्ट जोन कहा गया है.